Yes. Hello everyone. Very good morning to you all. Welcome to Phoenix International Group of Schools and welcome back to our session, children. So students, take out your textbooks. I hope you all are fine and you were missing our class, right? This is our textbook, children. Okay, take out our environmental studies textbook and open the page and come to the page number 20. So today we have to start a new lesson, children. That new lesson name is what? Can you pronounce the name? Yes, our lesson name is water. Our lesson name is water. It's very common, right? It is very common name, water. What do you mean by water, children? Water is nothing but pani, okay? That we use in our activities, daily life activities. Can you name some activities in which we are using water? Name any 5 activities where we are using water. फॉर ड्रिंकिंग, फॉर बाथिंग, ऐसे 5 एक्टिविटीज़ के नेम बताना है जहाँ पर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं. ओके, लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग, क्लीनिंग, स्विमिंग, cooking. In these activities what we are doing, we are using water. So by seeing this we understood that water is a very important thing, right children? एंड ये सारे एक्टिविटीज़ से हमको क्या मालूम हो रहा है कि वाटर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वी आर यूजिंग द वाटर इन नंबर ऑफ फॉर एक्टिविटीज़, डेली लाइफ एक्टिविटीज़. ओके, नाउ कैन यू सी हियर, कैन यू सी दिस पिक्चर? व्हाट्स देयर इन दिस पिक्चर? One man is there, he is crossing the road with an umbrella, right? What he is holding? He is holding one umbrella. When one person holds such things, children, umbrella हम कब use करते हैं? We are using umbrella when it is rain, right? When it is rain, जब बारिश होती है, at that time we are using umbrella. Now we will see what is related to this picture. Now keep your finger, first line. No life can exist without water. Okay, life exist नहीं हो सकता without water. We cannot live, children. Water supports life on the planet Earth. Water क्या करता है? Life को support करता है हमारे Earth planet पे. It means water is very important for everyone. Human beings and all the animals and plants need water to survive. सारे ह्यूमन बींग्स को, सारे जितने भी पर्सन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स को, इंसान को, एंड सारे एनिमल्स को, जानवर एंड ऑल प्लांट्स को, सारे प्लांट्स को भी क्या ज़रूरी है चिल्ड्रन? वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, ओके, जीने के लिए. देयरफॉर वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. सो वाटर इज़ व्हाट? वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर. 3/4, 3/4 सरफेस जो है ना चिल्ड्रन, अगर अपना अर्थ पूरा टोटल है तो उसमें से 3/4, दैट मीन्स 79% दैट इज़ टोटल वाटर इज़ प्रेजेंट. वाटर इज़ यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. वाटर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? वैरायटी ऑफ वेज, कई सारे एक्टिविटीज़ में हम वाटर यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, सच एज हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वाटर? फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, वॉशिंग, इरीगेशन, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. नाउ वेयर वी आर यूजिंग द वाटर? फॉर ड्रिंकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिंकिंग चिल्ड्रन? पानी पीने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. कुकिंग, जब हम कुक कर रहे हैं, आवर मॉम्स व्हेन शी इज़ कुकिंग, सो व्हेन शी इज़ कुकिंग राइस एट द टाइम ऑल्सो शी इज़ यूजिंग वाटर, राइट? सो व्हेन कुकिंग ऑल्सो वी आर यूजिंग वाटर. वॉशिंग, अगर कोई चीज़ हमको क्लीन करना है या साफ़ करना है तब वी आर यूजिंग वाटर. इरीगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इरीगेशन चिल्ड्रन? You might have observed that farmers they give water to the plants, right, in their agriculture land. जो farmers होते हैं वो अपने agriculture land में plant की growth अच्छे से होना, इसीलिए वो क्या करते हैं? regularly water देते हैं plants को, right, water डालते हैं. So that is nothing but that is the process of irrigation. Okay, and industries may be what we are using water. We get water from various sources. Some important sources of water are, हमको water कहाँ से मिलता है? कई सारे water के sources हैं, जैसे rain, river, underground water, seas, oceans, lakes, pond. Okay, so we will see here some important sources. कुछ important sources क्या है अब हम वो देखेंगे children. Okay, let's start. First one, what is the sources of our water? First one is we are going to learn about rain. Do you know rain? Yes, we know rain, right? And some of us love the rain also. Okay,
रेन. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. रेन किसको बोलेंगे अभी? रेन बोलेंगे हम बारिश को. किसको बोलेंगे? बारिश को रेन कहते हैं. ओके. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अर्थ पर जो है रेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है. एक पानी आने का बहुत ही मेन ज़रिया होता है चिल्ड्रन, रेन. ओके. वाटर साइकिल ब्रिंग्स द रेन. नाउ व्हाट ब्रिंग्स द रेन चिल्ड्रन? रेन किस तरह से हो रही है? वो जो वाटर साइकिल होता है वो रेन को लाता है. जैसे अब रेन हो रहा है तो वो कई लेक्स एंड सीज ओशंस में रहेगा. ओके. एंड जो सन होता है वो वाटर का इवोपरेट करता है, क्लाउड्स बनाते हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर में. देन क्लाउड से फिर रेन होता है, फिर रेन नीचे आता है, फिर वैसे इवोपरेट होकर ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं. व्हेन इट्स गेट कोल्ड एंड कंडेंस, देन अगेन रेन विल come back in the form of a rain, right children? So this is water cycle. This is water cycle children. Okay. Water cycle brings the rain. The rain feeds all the water bodies like river, lakes, ponds, seas, oceans and even groundwater. So rain will come and it will get condensed where children? Lakes, river, lakes, ponds, seas, oceans. बड़े जो rivers होते हैं and lakes होते हैं, नदी, समंदर, ये सारे ponds में पानी आ जाता है. इन सम एरियाज पीपल कलेक्ट रेन वाटर ऑफ रूफ टॉप्स एंड यूज इट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस चिल्ड्रन. ओके. सो इन सम एरियाज, कुछ एरियाज़ में पीपल क्या करते हैं? रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं. जब बारिश होती है ना तब उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं. ओके. ऑफ रूफ टॉप्स एंड यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेस. हमारे घर के जो ऊपर के छत होते हैं ना वहाँ पर रेन होने पर पानी जमा हो जाता, वो वाटर यूज़ करते हैं कुछ लोग. किसके लिए? कुछ लोग उसको प्लांट्स को वाटर देने में यूज़ करते हैं. एंड सम पीपल दे यूज़ फॉर द ड्रिंकिंग बट इट इज़ नॉट सेफ फॉर द ड्रिंकिंग चिल्ड्रन. ओके. बिकॉज एज वी नो दैट फॉर ड्रिंकिंग वी मस्ट वॉन्ट व्हाट? वी वॉन्ट प्योर एंड फिल्टर्ड वाटर वी वॉन्ट. ओके. जम फ्री वाटर वी वॉन्ट. हमको जम फ्री एंड फिल्टर्ड वाटर ज़रूरी है पीने के लिए. ओके. सो दैट वाटर इज़ नॉट गुड बट सम पीपल दे यूज़ फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो. ओके. नाउ first, what is the first source of water children? That is the rain. Rain is the first source of water. Okay. Next one is lakes and ponds. Lakes and ponds. Okay. The lakes and ponds are the depressions in the land that have been filled with water. Lakes and ponds क्या है children? ये depression है एक land में. जो land होता है ना उसमें depression रहना, एक थोड़ा सा area जो है वो अंदर की तरफ दबा हुआ रहना, जहाँ पर पानी अगर गिरेगा तो वहाँ पर जमा हो जाएगा. ओके. फिल्ड विथ वाटर, जो वाटर से भरा होता है ये लैंड, लेक्स एंड पॉन्ड्स. पॉन्ड इज़ ए स्मॉलर वाटर बॉडी देन लेक. पॉन्ड क्या है? लेक से छोटा वाटर बॉडी होता है, छोटा स्पेस होता है. ओके. रेन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर देम. एंड उनको पानी कहाँ से मिलता है? फ्रॉम रेन ओनली. दे गेट वाटर फ्रॉम रेन. ओके. इन सम केसेस द रिवर्स ऑल्सो फीड लेक्स है. एंड इन सम केसेस कभी यहाँ पर क्या होता है? रिवर्स भी क्या करते हैं? लेक्स को वाटर देते हैं. कैसे? सपोज अगर रेन हो रहा है तो माउंटेन के बीच में से क्या होता है? रिवर जाकर कहाँ पर मिलता है? लेक्स में मिल जाता है. तो वैसे ही रिवर वाटर ऑल्सो कम्स एंड मिक्सड अप विद द लेक्स है. After proper purification, the rainwater collected in lakes or ponds can be used for drinking and other purposes. So now here after what? After proper purifications, पूरा purification and filtered होने के बाद वो जो water है, rain water है, कहाँ पर collect होता है? लेक्स एंड जो पॉन्ड्स में कलेक्टेड है उसको हम क्या करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए एंड सम अदर पर्पज़ के लिए लाइक वॉशिंग, बाथिंग, स्विमिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन. ओके. So what is our sources of water children? First source is nothing but rain and the next source is lakes and ponds children. Okay. Now come to our next page. Please turn up the page and come to the next page number 21. Yes. Rivers. What is the next one? Rivers. Okay. So this is here rivers and this is the picture of river children. Large amount of rainwater finds its way into the rivers. And now here large amount of rainwater finds its way into the rivers. ज़्यादा जो रेन वाटर होता है वो कहाँ पर जाता है चिल्ड्रन? रिवर्स में ही जाता है. रिवर्स फाइनली फ्लो इनटू द सीज. एंड रिवर कहाँ पर मिलते हैं? रिवर फ्लो होकर कहाँ पर मिक्सड हो जाते हैं? जो सीज में मिक्स होते हैं, जो बड़े बड़े समंदर रहते हैं ना वहाँ पर वो वाटर चला जाता है, मिक्सड हो जाता है सीज में. Some big rivers originate from glaciers on high mountains. And now here some big जो rivers होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ग्लेशियर से स्टार्ट होते हैं चिल्ड्रन. ओके. माउंटेन्स के बीच में से. द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इज़ स्नोफॉल. एंड वहाँ पर मेजर सोर्स क्या होता है? स्नोफॉल होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द स्नोफॉल चिल्ड्रन? जो स्नो होता है ना वो फॉल होता है एंड दैट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर चिल्ड्रन.
रिवर वाटर कैन बी प्यूरिफाइड एंड मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेस। हम रिवर वाटर को क्या कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं एंड उसको ड्रिंकिंग के लिए एंड अदर पर्पसेस के लिए फिट बनाते हैं. वी मेक इट यूजेबल फॉर द ड्रिंकिंग एंड फॉर डूइंग अदर पर्पस चिल्ड्रन. ओके, so this is what we have learned. The sources of water is rain, lakes, pond, rivers children. Okay, lake, ponds, rain and rivers. Now the next one is seas and oceans. This is seas and oceans. बड़े बड़े जो समंदर होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड सीज. सीज एंड ओशंस आर द ह्यूज रिजर्वायर्स ऑफ वाटर. सीज एंड ओशंस क्या है चिल्ड्रन, ये रिजर्वायर है कि उसमें वाटर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जमा हो जाता है. मोस्ट ऑफ द रेन वाटर थ्रू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एंड अप्स इनटू द सीज और ओशंस. ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर होता है जो रिवर्स एंड ऑल से मिल रहा है वो कहाँ पर जाके जमा होता है, इन सीज एंड ओशंस में. द वाटर ऑफ दीज वाटर बॉडीज़ कैनॉट बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेस. अब जो वाटर सीज एंड ओशंस में प्रेजेंट है वो हम उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी साल्टी और सलाइन, ये बहुत ही खारा होता है चिल्ड्रन. ओके, बिकॉज number of the salts will be present in that water, so it becomes what, salty, so we cannot use that water. Okay, to make it drinkable, salt is removed from water. Now we are getting water for the drinking. From where it is coming? From the seas and oceans only. But the water of the seas and ocean is very saline, it is very salty. So why, how it is making drinkable children? We are removing the salt from the water. Salt को water से remove करते हैं and then we can drink the water. This process is called desalination. The process of removing the salt from the water, that process is called desalination children. Okay, water seas and oceans का बहुत ज़्यादा खारा होता है because इसमें नमक present होता है, बहुत salty होता है. So वो नमक को water से purify करना, उसको separate करना. Okay, so that is nothing but here desalination children. What is the process? Desalination. Okay, what are our sources of water? Rain, lakes, ponds, rivers, seas and ocean children. Okay, you remember till here. Continue of our lesson we will do in our next video. Okay, now come to our homework. This is our homework children. Okay, this is our homework of our 12th October. I have written the date here, you can see. Okay, so these are the hard words. You have to write this hard words one time in your notes. First one is water. First one is water, water. Water means पानी. नेक्स्ट वन कवर्ड. कवर्ड करना इन द सेंस चिल्ड्रन पूरा कवर्ड करके रखना. एक होता है ढांपना और एक होता है इतना एरिया को कवर करना, बोलते हैं ना ऐसे. ओशंस एंड रेन वाटर, साल्टी. ओके, बिग बिग जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उसको ओशंस बोलेंगे. रेन वाटर, बारिश के पानी को रेन वाटर बोलेंगे. साल्टी जो बहुत ही ज़्यादा खारा होता है. ओके, desalination. What do you mean by the desalination? The process of removing salt from water. Salt को water से remove करना, वो process को हम बोलेंगे desalination. We are saying. Okay, next one regularly. What do you mean by regularly? जो daily होता है that process is called regularly. DUG dug. DUG dug. Okay, what do you mean by dug children? DUC के डक इज़ डिफरेंट. ओके, जो बदक होती है. एंड DUG डग इज़ डिफरेंट, खोदना जो हम खोदते हैं ना, डगिंग करना, दिस इज डिगिंग. सो दिस इज़ डग इन द पास्ट. सो DUG डग. BOILING बॉइलिंग, उबालना. इरिगेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? वी यूज़ वाटर फॉर इरिगेशन ऑल्सो. वी गिव वाटर टू द प्लांट्स, राइट चिल्ड्रन. हम प्लांट्स को रेगुलरली क्या करते हैं, वाटर देते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग द वाटर टू द प्लांट्स, दैट इज़ नथिंग बट irrigation. What is called irrigation? You write this hard words one time in your notes. Put the lesson name, lesson number 4, water, and you write this hard words children. Okay, continue of our lesson we will do in our next video. Till then, take care and have a nice day everyone.